to watch this great man who is known as the master for the reverse swing shots. And with him, batsman name please. Raju Dabolkar will going to proceed from the pen name end, and Sanam Salgaonkar. All the eyes will be there on him. And Pritham is there onto the non-striking end. First semi-final of the today's train, Dhruv Trophy 2016. So you can see some of the great all-rounders there from the Dhruva pen name. Swapnil Malik, the captain of the Dhruva pen name, leading the side. And Raju Dabolkar, the hero of the last match yesterday. We have seen some blustering inning played by Raju. Will going to proceed the first over of the first semi-final. Right arm over the wicket to a master blaster there from the Zingaro boys, Sanam Salgaonkar. So all set up here for the first semi-final. Raju Dabolkar proceeding the first over of the first semi-final. Sanam Salgaonkar will going to take on the strike. First time in the over, that is a blastering stroke, but what a fielding effort there by Guru over there at the deep mid-wicket region. So start off that with a strike here by Sanam Salgaonkar on a very first delivery, first over, and great work there into the outfield by Guru. So first run on the board is off with the strike. Sanam Salgaonkar and Pritham. Another great all-rounder there from the Zingaro boys. Bardes, very good talented side. Anand Mandrekar, lot of experienced player. Rohit Shetty. Dhruva pen name. Confident looking side here. Winning combination here for the Dhruva pen name. Raju Dabolkar once again on his bowling mark will going to face to Pritham. First over of the power play is going on. Shot of a length delivery this time slightly into the gap. Chase here for the Vittal Gawas to deliver that one. But great work in the end. Two comfortable runs. So Sanam will going to settle only for the two comfortable runs here in the end. With those couple of runs, almost to 3 without loss. So great work there by Pritham. Just delivered, open the face of the ball, put it into the gap at the short third man region. Another great delivery. This time the ball kept very much low. The batsman doesn't understand the line which has been delivering here by Raju Dabolkar. 3 deliveries for him, 3 runs. So great start here for the Dhruva pen name. Another great work here by Raju Dabolkar. The batsman I just wanted to flick that one into the reverse swing shot. No runs has been taken, so resulted into dot delivery. So 4 deliveries, 3 runs. Good start here for the Dhruva pen name, especially the informed man Raju Dabolkar with a masterclass inning we have seen yesterday.
Once again on his bowling mark. This time again another great work here by yes, no. I think might be slightly misfielding there by Swapnil Marik, because otherwise this could have been trouble here, because Sanam Salgaonkar already come out of his crease to get the run, but there is no understanding between the batsman. Yes, no, but finally decided not to take the run. So great work here. This man Raju Dabolkar yesterday in the through over have given away only 1 runs. And that is the strength class, master class of this man, Raju Dabolkar. Only 3 runs onto the scorecard, you can say. Very good start for Dhruva Penne. Another great work behind the stump there by Sanju Nagwekar, you can say. The finger goes up, the batsman has to depart. So first wicket down here for Zingaro boys. And what a start, you can exceptionally well. A dream start, you can say here for Dhruva Penne on the very first over. 3 for the loss of 1 wicket now. Will be going to take on the strike. Reverse sweep. This is the master. As I said earlier, because this is the master class that is come from the blade of Sanam Salgaonkar, and that is the first 6 of the inning that comes from the blade of Sanam Salgaonkar right into the middle, and that goes over onto the backward point for 6. So first 6 of the inning for Zingaro boys, and that's the man Sanam Salgaonkar. The spectators might be watching this match, a very high profile match, first semi-final of the Dhruva Trophy 2016, and welcoming here Bandya Bhagat Bhai on a very first delivery for 6. Another full toss delivery, make the room for himself and flicked it away onto the deep square leg region for a beautiful shot in the end. Great way to execute this shot, full toss delivery, deliver into the stand for 4. So back-to-back boundaries and 6 here for Sanam Salgaonkar. Suddenly the score moves to now 13 for the loss of 1 wicket. Great start in a very first over here for Dhruva Penne, but unfortunately this has not been a great work here for Bandya Bhagat. 2 deliveries delivering into the stand, one at the backward point and this one at the deep square leg region. So 2 deliveries, 10 runs here. Suddenly the score moves to 13. So as far as Dhruva Penne is concerned, Sanam Salgaonkar wickets will be a very crucial at this stage of the cricket here for the Zingaro boys, and it might be required here for the Zingaro boys, Sanam Salgaonkar, to stay there onto the crease for another 2-3 overs. Will be a very good point here for Zingaro Bardes, and Bandya might be given some sort of guidelines here by Sanju Nagwekar in which line and length he has to be bowled. And once again, Bandya will going to face to Sanam here once again. This time, I think that could have been trouble. Yes, it is. So first wicket down here for Zingaro boys, and that is the blade. And Bandya Bhagat had done the damage in the crucial wicket at this stage for
So great work here by Bande Dabat, because the guideline which has been suggested by Sanju Nagwekar behind the stump took just given away, and that exactly the line and length which has been bowled. He was wanted to play that away with the spin, but got the upper edge of the ball and at the boundary, at the cover point region, taken a beautiful catch. So second down the ground. So second wicket fallen here for Zingaro boys. Informed batsman Sanam Salgaonkar, we have faced 4 deliveries and placed that 11 runs for his inning, but doesn't matter, it just got out for the loss, for the score of 11 runs. Supresh, the next man to come here for Zingaro boys after getting the wicket of Sanam Salgaonkar. What a start he has given for his team. 2 deliveries, 1 into the backward point, but after that getting an important breakthrough by Bande Bhagat in the 3rd delivery, and that works here for Bande Bhagat. He is a specialized class man and he knows the conditions of the ground, and Supresh will going to take on the strike here for Bande Bhagat once again. Over pitch delivery. This time the ball is in the air. 2 men coming under it. Rama missed that one. We just cannot expect it this from Rama, because he never used to use these kinds of catches, and that is the missed opportunity here for Rama. Doesn't matter. This is a cricket. Anything can be happen in the cricket. These kinds of things are happen when a great fielder missing the catches. So Rama might be disappointed with that, losing that delivery into the stand. The ball is in the air for a long time. So ample opportunities here for the Rama to come and take that catch. So 2 more runs added to the total, 15. Another great work. I think that will clear here with the mid-wicket region. Only 1 runs. So great work here by Bande Bhagat. Just not allowed the batsman to fray their arms. It might be missing that opportunity ball in the air for a little while. Rama missed that one opportunity. Whether that opportunity will going to cost here for Dhruva Penne, we just have to wait and see. Second over is in progress. Score is 16 for the loss of 2 wickets. Beautiful shot played by Sanam Salgaonkar, but unfortunately getting the upper edge of the ball straight in the hands at the cover point region for a beautiful shot. So Shaba, all the responsibilities will be coming here onto the Shaba and Supresh now. Great work here, slightly inside it, the ball is in the... So great work there by Vittal Gawa, straight into the hands behind the wicket. So 2 overs completed, score after loss of 2 wickets, score is 17. रन 2 विकेट पर। मिड ऑन बाउंड्री पर शायद राम नागवेकर के हाथों से कैच छूटते हुए देखने को मिला। शायद क्रिकेट के कई सालों से हम शायद क्रिकेट का खेल देख रहे, कमेंट्री कर रहे हैं समीर, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसा है जो कि शायद फील्डिंग के लिए जिनको नवाजा जाता है, बड़े प्यार से आदर से नाम लिया जाता है। अक्षय घाटवल हो, गोपाल भट्टा हो, राधा कृष्ण पेडनेकर हो, राम नागवेकर हो, शायद हमने बिल्कुल शायद कम बार देखा होगा कि इनको कभी मिसफील्ड किया इन्होंने या शायद कैच छूटा, लेकिन शायद खेल है, क्रिकेट का खेल है। बाहर से बातें करना आसान रहता है, मैदान में शायद उतनी बात आसान नहीं रहती है। और शायद अंपायर के बीच में इशारा ध्रुव ओवर का, फिलहाल छोटी सी शायद गलती कर बैठे राम नागवेकर, कैच छूटा जरूर, लेकिन फिलहाल आने वाला समय बताया गया जो कि कितना महंगा साबित होता है। और इसी बीच में राजू दाभोलकर दूर वाले छोर से ध्रुव ओवर और उनके ओवर की पहली गेंद, शाबाश स्ट्राइक एंड पर संजू नागवेकर विकेट के पीछे शायद चौकर ने। समीर क्या कहेंगे संजू नागवेकर के बारे में? शायद 2 विकेट के पर हम शायद यादगार जरूर कहेंगे। रणझुंझार क्रिकेट टीम की ओर से किरण खटकर और संजू नागवेकर शायद इतने स्फूर्तिले, शायद
उम्र बढ़ रही है लेकिन स्फूर्ति शायद उससे भी ज्यादा तेज बढ़ रही है, बहुत ही स्फूर्तिले संजू नागवेकर विकेट से पीछे। ओवर पिच गेंद, बढ़िया शॉट इस बार हाँ पॉली पर लिया शाबा के बल्ले से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक शानदार चौका, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। और हमारे साथी जबकि प्रज्वत जो कि पूरी जानकारी देते हुए क्रिकेट के खेल के बारे में, राजू दाभोलकर के बारे में, शायद कल का जो कि एक ध्रुव ओवर था, बहुत बढ़िया ओवर, 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। शायद अगर ध्रुव ओवर के लिए अगर इनाम हो तो शायद हकदार हो गए राजू दाभोलकर। लेग स्टंप पर फ्लाइटेड गेंद, इस बार हल्के से खेलना चाहते थे और ये शायद गलती कर बैठे, नॉन स्ट्राइकर एंड से सुप्रेशा बिना देखे निकले, गेंद उतनी दूर नहीं थी, शायद रन हो सकता था। सुप्रेश वापस तीसरे विकेट के रूप में। शायद थोड़ी सी जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम मैच के भीतर में मैदान में सेमीफाइनल के इस मुकाबले में शायद थोड़ी सी संकट में दिखाई देती हुई सनम वापस निकले, लेकिन अभी भी काफी बैटिंग लाइनअप बाकी है। शायद वो बल्लेबाज मैदान में कई बार शायद जिस विपरीत स्थितियों में अपने टीम को बिल्कुल जो कि अच्छे मोड पर खड़ा कर दिया, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हरपन मावला खिलाड़ी पुनाजी स्ट्राइक नॉन स्ट्राइकर एंड पर ऑप्टम से बाहर, ये गेंद वाइड बॉल का इशारा। टोटल 2 रन स्कोर के खाते में, 2 रन स्कोर के खाते में, 2 रन जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम के खाते में और स्कोर आगे निकलता हुआ 23 लॉस ऑफ 3 विकेट, 23 रन 3 विकेट पर और स्ट्राइक पर बल्लेबाज पुनाजी। ध्रुव ओवर राजू दाभोलकर गेंदबाजी करते हुए और सामने स्ट्राइक पर एक स्फोटक विस्फोटक बल्लेबाज पुनाजी सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, ऑफ स्टंप पर हल्के से खेलना चाहते थे लेकिन शायद टाइमिंग नहीं कर पाए, ठीक से बल्ले पर लेने में असफल रहे। संजू नागवेकर ने बाकी का काम पूरा किया, विकेट को बिल्कुल चिपके हुए एक ध्रुव पार्श्व क्रिकेट टीम की ओर से अनुभवी खिलाड़ी मैदान में और सामने से दूर वाले छोर से एक बार फिर से राजू दाभोलकर राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली, इस बार काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन फिर से स्कोर के खाते में और बढ़ता हुआ। 8 ओवर का मैच, सेमीफाइनल का एक तगड़ा मुकाबला दोनों के बीच में। पिछला मैच 88 रनों का, शायद वो टोटल भी कम दिखाई दिया मैच पर मैदान पर। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट लॉब किया, मिड ऑन बाउंड्री पर गेंद, 6 रन के लिए पुनाजी जो कि शानदार छक्के के साथ से आगाज करते हुए मैदान पर, शायद सामने वाले टीम के लिए कि अभी भी बैटिंग लाइनअप बाकी है, शायद ये मुकाबला वैसे हम तो हाथों से जाने नहीं देंगे। एक शानदार छक्का अपना खाता खोलते हुए पुनाजी 6 रन के साथ से स्कोर 30 रन 3 विकेट पर, तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर। फिर से ओवर पेज गेंद, तगड़ा शॉट, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और एक सन्नाटेदार छक्का, 6 रन के लिए गेंद से मारेगा से बाहर। शायद जय दर्शकों के लिए जानकारी, कृष्णा सातपुते, ओमकार देसाई, इजाज कुरैशी के लिए देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन दर्शकों को जानकारी याद दिला दूं भाई, सिंधुदुर्ग जिले में जब जब मुकाबले रहते हैं तो सनम सालगांवकर हो, पुनाजी हो, मनोज नागवेकर हो, राम नागवेकर हो, भाई इनके लिए भी लोग हमारे तरफ जो कि सिंधुदुर्ग जिले में इनका खेल देखने के लिए अपना सब कुछ काम का अच्छा छोड़कर जो कि मैदान पर जमा होते हैं। इतने ये पसंदीदा खिलाड़ी है जो कि सिंधुदुर्ग जिले में। शायद दूर वाले छोर से देखना होगा कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, और एक बदलाव दिखाई देते हुए गेंदबाजी में दोंडो आते हुए अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर।
सामने से नॉन स्ट्राइकर एंड पर दो बड़े शॉट के साथ से पुनाजी जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, शाबाश स्ट्राइक एंड पर। और शायद मेरे ख्याल से जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम की प्रतीक्षा होगी, उम्मीद होगी कि जितना हो सके लंबे खेले पुनाजी, शायद 8वें ओवर तक खेले। और मैं फिर से बता दूं, शायद मैंने पहले पिछले मैच में भी बताया था 90 का टोटल होना चाहिए था, और मैं शायद सेमीफाइनल के मैच में भी वही बात दोहरा दूंगा, वही बात बोलूंगा कि विकेट अच्छा है, पिच क्यूरेटर को बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। रन शायद बंद नहीं बह रहे हैं इस विकेट पर, तो शायद मैं फिर से जरूर बात बोलूंगा, शायद 90 का टोटल होना चाहिए, क्योंकि सामने ध्रुव पासे क्रिकेट टीम के पास में राजू दाभोलकर जिन्होंने अर्धशतक, संजू नागवेकर, राम नागवेकर, बंड्या भगत, स्वप्निल मलिक जैसे, शायद क्या बैटिंग लाइनअप है, एक से बढ़कर एक। फुल टॉस के इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन शायद उतनी जो कि होना चाहिए था वो नहीं निकला। फिलहाल एक रन जरूर बना, स्ट्राइक रोटेट हुआ, शायद ये बात अच्छी की शाबा ने मेरे ख्याल से। सामने से मौका दिया पुनाजी को, पुनाजी स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे धोंडू की गेंदबाजी का। ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, एक स्लिप पर लगभग शॉर्ट साइड में, एक एक्स्ट्रा कवर पर, 4 फील्डर ऑफसाइड पर, 5 ऑन साइड पर। अच्छी गेंद इस बार सलमान बख्शा, डीले हाथों से, शायद गुडले स्पॉट पर थोड़ी सी ऊपर जरूर थी गेंद, लेकिन बढ़िया क्रिकेट मैदान पे एक तेजी के साथ सिंगल बना दिया। 1 रन स्कोर के खाते में, 1 रन पुनाजी के खाते में, 1 रन जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम के सामने। सामने से सामने वाले स्कोर बोर्ड पर, लकड़ी के स्कोर बोर्ड पर लक्ष्मण नागवेकर शायद पूरे 3 दिन अपना काम निभाते हुए। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट, देखना होगा, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, शाबा ने मौका मिला, हाथ खोले, ओवर पेज गेंद मिली, गेंद को लॉफ्ट किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, शाबा के बल्ले से शानदार छक्का। हमारे साथी कमेंटेटर जय भोसले अक्सर कहा करते हैं कि भाई क्रिकेट एक का खेल नहीं होता, हर एक को हाथ बढ़ाना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो बात मैदान में पुनाजी का जो कि साथ दिया शाबा ने अपना जो कि एक शानदार छक्का जमाया अपने स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे निकलता हुआ। चालीस रन 3 विकेट, 44 रन 3 विकेट पर। इस बार ऑफ स्टंप पर ये छोड़कर निकली गेंद, थोड़ा सा पीछे हटकर खेलना चाहते थे, संजू नागवेकर तेजी के साथ आते, सिलमिडॉन पर गेंद को फील्ड करते हैं, थोड़ी सी हंसी मजाक बीच में मैदान पर दिखाई देते हुए, लेकिन फिलहाल रन की संभावना को समाप्त कर दिया। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ये 4 फील्डर ऑन साइड, 5 फील्डर ऑन साइड पर। अच्छी गेंद इस बार ढीले हाथों से हल्के से खेला, शॉर्ट कवर पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, मिस फील्ड कर बैठे, और जब तक अपने आप को संभलते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया, 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 45 रन। शायद जहां तक रन रेट का सवाल है, मैं तो कहूंगा शायद जिंगारो बॉयज बिल्कुल सही रफ्तार से, सही राह पर चल रही थी। बढ़िया शॉट इस बार, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट, एक अच्छा शॉट फ्रंट फुट पर जो कि ऑफ ड्राइव का, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बंड्या भगत जब तक आते गेंद को फील्ड करते, 1 रन अपने खाते में बना दिया। अच्छा क्रिकेट मैदान में खराब गेंदों पर बड़ा शॉट, एक सिंगल के साथ अपने आप को रोटेट कर रही है। ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवर आधे ओवर का खेल समाप्त, 46 रन 3 विकेट पर। कंप्लीशन अपना 4 ओवर, 46 लॉस ऑफ 3 विकेट। ध्रुव स्पोर्ट्स एंड कल्चर क्लब द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता गोवा राज्य के साथ साथ सिंधुदुर्ग जिले की 2 टीमें, जो कि इसमें जिस 2 टीमों ने हिस्सा लिया था, आज का अंतिम दिन सेमीफाइनल का मुकाबला, एक बहुत ही शानदार आयोजन, अच्छा मैदान, सुरेश रैना ग्राउंड के नाम से जाने जाने वाला, दर्शकों को बैठने के लिए बिल्कुल एक जो कि अच्छा स्टैंड दिखाई देता हुआ, क्रिकेट का पूरे मजा लेते हुए दर्शक, और शायद दाद देनी पड़ेगी दीपक जी कलंगुटकर को, उनके सभी जो कि साथियों को, कि आपने इतना बड़ा जो कि शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता में, और हमें मौका दिया है जो कि इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी में परिवर्तन दूर वाले छोर से।
लेग स्टंप पर अगेन सुंदर शॉट, इस बार स्वीप किया लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग, लॉन्ग लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते। सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन, आमिर जो कि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज अराउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और पुना जी ने 1 रन के साथ से अपना स्कोर आगे बढ़ाया। 45 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट पर, 5वां ओवर जो कि प्रगति पर। अच्छी गेंद, इस बार तेज गेंद निकली, थोड़ी सी जो कि लेग ब्रेक, लेग कटर, बाएं हाथ के गेंदबाजों की खासियत रहती है जो कि गेंद को कट कराते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। शाबाश जो कि पुल करना चाहते थे लेकिन शायद टाइमिंग नहीं कर पाए। 47 लॉस ऑफ 3 विकेट, 47 रन 3 विकेट पर। इस बार थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, चेंज ऑफ पेस, परिवर्तन किया, इस बार चकमा दिया गेंद ने और विकेट से पीछे संजू नागवेकर ने बाकी का काम पूरा किया। अबे गेंदबाजी करते हुए शायद पहली गेंद तेज की थी, बाद में थोड़ा सा जबकि गति में परिवर्तन किया, बिल्कुल जो कि शायद कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी बल्लेबाजों को शाबाश स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। फिर से बढ़िया गेंद, शायद ऑफ स्टंप पर कट होकर और बाहर की तरफ निकली, विकेट के पास संजू नागवेकर ने जो कि शायद करामत विकेट से पीछे जरूर की, गेंद को फील्ड किया, रन की संभावना को। एक अच्छा ओवर मेरे ख्याल से ये 5वां ओवर जो कि प्रगति पर, इसके बाद से 3 ओवर का खेल बाकी, लेकिन ये फायदेमंद ओवर ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के लिए अब तक। शायद इस गेंद पर देखना होगा क्या होता है। फिर से अच्छी गेंद, इस बार 1 रन, अच्छी फील्डिंग जो कि स्लिप पर लगभग शॉर्ट टच बैन पर, गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन स्कोर के खाते में और 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन, 48 लॉस ऑफ 3 विकेट, 5वां ओवर जो कि प्रगति पर। 3 ओवर का अभी भी खेल बाकी, 7 विकेट हाथों में। शायद मैं तो कहूंगा इस ओवर के बाद थोड़े से आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, हाथ खोलने पड़ेंगे, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। इस बार जो कि स्टंप को कवर करके मारना चाहते थे, शायद थोड़ा टाइमिंग नहीं कर पाए पुना जी। स्क्वायर लेग अंपायर के सामने विकेट कीपर संजू नागवेकर खुद जाते, गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ से ओवर मुकम्मल होता हुआ 5 ओवर समाप्त, 49 रन 3 विकेट पर। जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम सेमीफाइनल के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए, शायद 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, शायद मेरे ख्याल से काफी पीछे दिखाई देती हुई, लेकिन जब तक पुना जी मैदान पर शायद उम्मीद जरूर होगी 90 के टोटल के, और अगर 85-90 के आसपास स्कोर बना तो शायद मजा आ जाएगा इस मैच में। ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के खेमे में बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, अपने होम पिच पे घर के मैदान पर घर के दर्शकों के सामने खेल रही है, लेकिन मुकाबला सेमीफाइनल का है, प्रेशर जरूर होगा। क्या होता है, कहां पर बारिश सीमित होती है, ले चलता है कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए जय भोसले के साथ। धन्यवाद। दोंडू की ये गेंद उछाल लेते हुए गुल्डिंग स्पॉट के पास से नो बॉल का इशारा और गेंद मात्र सीमा रेखा पार, यानी कि 5 रन खाते में जुड़ेंगे और 5 रन के साथ जो कि यहाँ पर 54 रन बन चुके हैं, यानी कि जिंगारू बॉयज के यहाँ पर 50 रन पूरे होते हैं। शानदार जो कि शुरुआत कही जाएगी। पुना जी जब तक मैदान के ऊपर, साबा जोड़ी ये मैदान के ऊपर, तो दोनों छोर से रन बनाने की कोशिश, लेकिन ध्रुव पारसन के ओर से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज। फ्रेड का इशारा और फ्रेड का इशारा पुना जी के लिए। दोंडू जो के होनहार गेंदबाज, यहाँ पर अनुभवी गेंदबाज, पटकी हुई गेंद, इस बार खेला, जैसे ही गेंद उनके बल्ले से टकराती है मधुर से आवाज निकलती है और गेंद चली जाती है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। पुना जी के बल्ले से निकलता हुआ शायद ये 3रा छक्का होगा। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। जय, मैच से पहले हमने बात की थी ओमकार देसाई, कृष्णा सातपुते जैसे बल्लेबाजों को देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन हमने बात छेड़ी थी सनम हो, राम हो, मनोज हो या पुना जी हो, उनके लिए भी सिंधुदुर्ग जिले में लोग क्यों आते हैं, शायद ये बात मैदान में दिखाई देती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा, कृष्णा सातपुते हो, महाराज हो, ये तो प्रोफेशनल खिलाड़ी है,
और जो कि बड़ा बड़ा जब प्रतियोगिता होते हैं तभी ये खिलाड़ी आते हैं, पहले उनकी कुछ मांग होती है, लेकिन ये खिलाड़ी गोवन खिलाड़ी जो होते हैं, शायद वो पुनाजी कलंगुटकर हो, राम नागवेकर हो, संजू नागवेकर जो कि डैदलिंग महाफसा, समीर ठाकुर हो, संदेश ठाकुर हो, ये खिलाड़ी जो है अपना खेल के लिए, क्रिकेट के लिए मैदान के भीतर जाते हैं। इस देखिए शानदार स्ट्रोक, यहाँ पर ऑफ कवर ड्राइव का स्ट्रोक, 1 रन तो जरूर बनेगा। 1 रन के साथ अब मात्र रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 61 रन के ऊपर। सनम सालगांवकर रिवर्स स्वीप का किंग कहा जाता है, उसका खेल देखने के लिए तो सिंधुदुर्ग जिले में काफी तादाद में दर्शक आते हैं। तो निश्चित रूप से ये खिलाड़ी जो गोवन खिलाड़ी है, ये क्रिकेट के लिए 100% योगदान देने वाले खिलाड़ी है। फिलहाल दोनों फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे साबा। इस बार साबा के बल्ले के निचले हिस्से से लेके जरूर, लेकिन थर्ड मैन की गली की दिशा में जाते हुए यहाँ पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को उठाया, थ्रो किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक। फिर एक बार पुनाजी के पास रन संख्या मात्र परावर्तित 62 रन के ऊपर। निश्चित रूप से 80-90 का हमने टारगेट कहा, लेकिन इसी तरह के बल्लेबाजी होती रही तो 100 का आंकड़ा मुकम्मल होगा। लेकिन एक अगर करिश्माई गेंदबाजी, एक आध ओवर में 2 विकेट अगर जल्दी गिर जाए ध्रुव पेडनेम के ओर से, तो शायद मैच में और मजा आ जाएगा और रोमांचकता बढ़ेगा। ध्रुव ट्रॉफी 2016 का ये पहला सेमीफाइनल का मुकाबला जो कि जिंगारू बॉयज और ध्रुव पेडनेम के बीच में। निश्चित रूप से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, पहले 2 ओवर में अच्छा साबित हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा भटके जरूर, लेकिन बीच बीच में अच्छी गेंदें भी यहां पर करते हुए, यहां पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हो गई, तब तक यहां पर दूसरा रन भी मुकम्मल, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दो खिलाड़ियों द्वारा। 2 रन के साथ अब मात्र रन संख्या जो कि 64 रन के ऊपर, 64 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, छठा और प्रगति के ऊपर। और धोंडू जो कि गेंदबाजी के लिए जाना जाता है, माहिर गेंदबाज, कसावट भरी गेंदबाजी के लिए, लेकिन फिलहाल तो जब फ्री हिट हो तो शायद गेंदबाज के पास कोई चारा नहीं होता है। जड़ में अगर गेंद डालोगे तो ही बल्लेबाज खामोश हो सकता है, वरना शॉर्ट गेंद के ऊपर तो बड़ा शॉट आना ही है। इस बीच फिर एक बार खेलना चाहते थे, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी, और ये आउट। पुनाजी की ये 3 छक्के और 1 चौके की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई, चौथा आघात जो कि लगा और धोंडू ने जो कि उनको चाहिए था वो विकेट चटकाया। अट्ठाईस रनों की लाजवाब पारी, जिसमें 3 करारे छक्के, लंबे छक्के और 1 चौके के समय शानदार पारी यहां पर समाप्त होती हुई। अब मात्र मैदान के भीतर जाता हुआ अनंत मांद्रेकर। मैं तो अशोक यहां पर कहूंगा, इस विकेट में 50% योगदान राम नागवेकर का है। उनको पता है पुनाजी स्ट्रगल करके आगे जाते हैं, खेलते हैं, तो उन्होंने धोंडू को इशारा किया, भाई ऑफ स्टंप के थोड़े से बाहर डालोगे, और भी डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको अगर जाल में पकड़ना है तो गेंदबाजी इस तरह की करनी होगी। और सही मायने में वो जाल बुनने में कामयाब हो गए, और जो एक सेट बल्लेबाज को वापसी का रास्ता तय करना पड़ा। धोंडू आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की एक महत्वपूर्ण सफलता, छक्का जरूर खाया, लेकिन उसके बाद अनंत मांद्रेकर के लिए गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, 1 रन जरूर पूरा करेंगे, खुद की रन संख्या को शुरुआत कर दिया। धोंडू खुद को जब तक फील्ड करे और मुकम्मल होता हुआ यहाँ पर छठा, 6 ओवरों का खेल समाप्त और रन संख्या जो कि 70 रन, 65 रन जो कि 4 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव पेडनेम और जिंगारू बॉयज के बीच में चलता हुआ इस सेमीफाइनल का मुकाबला। निश्चित रूप से टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला घरेलू दर्शकों के सामने, घरेलू मैदान के ऊपर, और यहां पर संजू नागवेकर फिर एक बार विकेट कीपिंग के लिए आते हुए। गेंदबाजी में फिर एक बार आमिर सालगांवकर जो कि युवा खोज है, यो कि अगर बात की जाए विट्ठल गांव से स्वप्निल मलिक हो या आमिर सालगांवकर हो, ये खोज पेडनेम प्रीमियर लीग में मिली है, और निश्चित रूप से उभरते हुए खिलाड़ी कल ये भविष्य में बड़े खिलाड़ी सितारे बन के चमकेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं।
अनंत मांद्रेकर एक ऑलराउंडर के हैसियत से जाना जाता है और इस साल यानी हर साल में वो फॉर्म में जरूर रहता है। अपने टीम को जब जरूरत होती है संकट मोचक बड़ी पारी खेलने के लिए जाना जाता है। फिलहाल तो इस बार खेलना चाहते थे, गेंद अंदर, डंडी बाहर, यू मिस में, आई हेट यू, क्लीन बॉल। मैदान के भीतर हमारे कमेंट्री बॉक्स से भोंपू बजता हुआ नजर आ रहा है। एक वातावरण बनता है और इतनी बड़ी प्रतियोगिता हो, दर्शक भी काफी तादाद में मौजूद है। कल से ज्यादा आज स्टैंड खचाखच भरा हुआ और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दीपक जी कलंगुटकर का, जिनको हमने कहा था पेरनेम प्रीमियर लीग में दर्शकों के लिए खास थोड़ी सी बैठने के लिए व्यवस्था करें और उन्होंने हमारी विनती का स्वीकार किया और अपने आश्वासन यहाँ पर पूरा कर दिया। चारों स्टैंड फुल। मैं शुक्रिया अदा करूंगा इन दीपक कलंगुटकर का। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर रोहन सालगांवकर, गेंद विकेटों के ऊपर थी, खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी और मैं तो तारीफ करना चाहूंगा विकेट कीपर संजू नागवेकर। जब विकेट के ऊपर खड़े रहते हैं तो बल्लेबाज के ऊपर एक दबाव रहता है, स्टेपल करे या ना करे। फुलटॉस गेंद इस बार खेला तारामंडल में, तूफानी बेल, हवा से बातें करती हुई गेंद, सीमा रेखा पार, सन्नाटेदार छक्का रोहन के बल्ले से निकलता हुआ। इसकी पहले गेंद लाजवाब गेंद, लॉक कर दिया था बल्लेबाज को, खेलने का कोई मौका ही नहीं था, लेकिन ये खराब गेंद शेर के सामने दावत रखने के बराबर, और शेर के सामने जब ऐसे दावत रखोगे तो शेर ना कबूल कैसा कर सकता है। फुलटॉस गेंद मानो कोई भी बल्लेबाज उसके ऊपर बड़ा प्रहार करने की सोच में होता है, चाहे वो पहले क्रम वाला बल्लेबाज हो या 10 नंबर वाला खिलाड़ी हो। छक्के के बदौलत रन संख्या मात्र परावर्तित 71 रन के ऊपर। फिर एक बार खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर जाकर, इस बार डिप स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, जब तक आए गेंद को उठाया, थ्रो किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक सौंपी सावा के लिए और रन संख्या मात्र परावर्तित होते 72 रन के ऊपर। 80-90 का टोटल बना जाए तो सम्मानजनक टोटल कहा जाएगा इस मैदान के ऊपर। मैं तो ध्रुव ओवर की बात करना चाहूंगा, क्या राजू दाभोलकर की करिश्माई गेंदबाजी, ध्रुव ओवर में इस तरह की गेंदबाजी करना, सिर्फ वो 2 छक्के छोड़ा जाए तो शानदार गेंदबाजी उसने की राजू दाभोलकर ने। इस बार स्लो आर्म डिलीवरी, स्पेस से धोखा का बैठे, रन आउट का खतरा, जी और आउट, साबा रन आउट होकर पावल में वापस, यानी कि सेड हुए बल्लेबाज को वापस खेमे में पहुंचने में कामयाबी मिल चुकी है संजू नागवेकर उनके पूरे खेमे को। क्रिकेट के लिए झोंक देने वाली प्रतियोगिता अगर किसे कही जाए तो इसे कहते हैं, ना चियल गर्ल्स है ना फिजूल का खर्चा है, सिर्फ क्रिकेट के लिए। इस बार खेला हो में गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैच होने की संभावना और एक विकेट, बड़ी मछली जाल में।
गेंद के ऊपर छक्का खाया, तीसरी गेंद के ऊपर साबा को चलता कर दिया, चौथी गेंद के ऊपर रोहन को चलता कर दिया। और में सब कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है। बंद मुट्ठी जब खुल जाती है तो सितारे चमकने लगते हैं, और सितारे जब चमकते हैं तो तजुर्बा आसमान को छू जाता है। यह है सुरेश रैना ग्राउंड का नतीजा। दर्शक चारों ओर खचाखच भरे हुए, और गेंदबाजी की क्या कहने, न्यू फाइन गेंदबाज आमिर सालगांवकर, लाजवाब गेंदबाजी। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर विवेक, स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मालिंगा, रनों के ऊपर अंकुश ही नहीं, बीच बीच में विकेट भी चटका लिया है गेंदबाजों ने। काबिल तारीफ गेंदबाजी, हौसला अफजाई करना होगा इन गेंदबाजों का। अच्छी गेंद, फिर एक विकेट, क्या कहने, शिकार के ऊपर शिकार। तो ड्रीम स्पेल है, जड़ में डाली हुई गेंद, खेलना चाहते थे हटकर, गेंद ने अपना रास्ता तय किया, सीधी जा लगी विकेटों के ऊपर, निशाना साधा और मालिंगा को चलता कर दिया बिना खाता खोले। क्या गजब की गेंदबाजी। अगर ऐसे गेंदबाज टीम में हो तो किसी भी टीम 100% मैच जीतने के चांसेस हो जाता है। गेंदबाजी का पृथक्करण देखिए, 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं और 3 महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है इस युवा गेंदबाज ने। क्या कहने इस खिलाड़ी के, क्या कहने गेंदबाजी के, क्या कहने इस फील्डिंग की। कांटे का मुकाबला, आन बान और शान की लड़ाई, और अब तक तो पलड़ा यहां पर भारी लगता हुआ ध्रुव पेडनेम टीम का। एक दबाव होता है दर्शकों के घरेलू मैदान के ऊपर खेलने का, लेकिन जो दबाव को जुटला कर 100% प्रदर्शन करता है वही टीम सही मायने में अच्छी टीम कही जाती है, और वो दबाव यहां पर जुटला दिया है ध्रुव पेडनेम टीम ने। बंडे भगत गेंदबाजी की भागदौड़, आखिरी ओवर लेकर सामना करेंगे विवेक। इस बार खेलना चाहते थे बड़ा शॉट के लिए, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, पहला रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, रोहन शेट्टी पलटना चाहते थे लेकिन मना कर दिया विवेक ने 1 रन के ऊपर। और काफी देर के बाद रन संख्या में बदलाव होता, रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 73 रन के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, मैं तो कहूंगा खराब बल्लेबाजी जिंगारू बॉयज की। मैं 100% मार्क देना चाहूंगा गेंदबाजी के लिए, क्योंकि गेंदबाजी इस तरह के बल्लेबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया उन्होंने खेलने का, खुलकर खेलने का। ये मात्रा थोड़ी सी भटकी हुई गेंद, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या मात्र परावर्तित होती हुई 74 रन के ऊपर। इस प्रतियोगिता में 2 यादगार पारी याद रखी जाएगी, गोपाल भटाकी और कल एक राजू बना था जेंटलमैन। इस बीच फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर, यहां पर निश्चित रूप से फिर एक बार वाइड। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या पहुंची है 75 रन के ऊपर, 75 रन। अतिथि कक्ष फुल हो चुका है। अतिथि कक्ष में काफी मान्यवर अतिथिगण मौजूद मुकाबलों का आनंद लेने के लिए। बंड्या फिर एक बार, इस बार रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर। 1 रन खाते में और जोड़े गए। और इस प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला दोपहर 2:30 बजे इस मैदान के ऊपर खेला जाएगा। जो जीतेगा वो कहलाएगा ध्रुव ट्रॉफी 2016 का चैंपियन। बंडे की गेंद, इस बार खेला हवा में गेंद जरूर, लेकिन नीचे रहते हुए फिर एक बार 1 रन तो जरूर। दूसरे के लिए पलटना चाहते थे लेकिन सिंगल के ऊपर ही निर्भर। क्या थ्रो, सटीक थ्रो, क्या कहने। थ्रो स्ट्रॉन्ग आर्म किसे कहते हैं, जब थ्रो लगभग विकेटों के ऊपर विकेट कीपर को हिलने के डुलने की जरूरत नहीं होती है, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग आर्म थ्रो। बंड्या भगत
फिर एक बार, अब तक तो अच्छा और 2 गेंदे वाइड जरूर डाले, लेकिन शानदार गेंदबाजी, शानदार वापसी का दरवाजा। ये अच्छी गेंद वहां पर निश्चित रूप से देखना है रन आउट का। जी हाँ, एक रन आउट, रन तो नहीं मिला लेकिन विकेट तो चला गया। के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो यहां पर शानदार बल्लेबाजी की थी पुना जी ने, 28 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। शाबा ने 15 रन बनाए, सनम ने 11 रनों का योगदान दिया। बाकी खिलाड़ियों ने मात्र यहां पर मानो कोई टेलीफोन नंबर हो 230702 जैसे यहां पर जो कि परफॉर्मेंस दिया। तुषार नया बल्लेबाज मैदान के भीतर जाता हुआ, 3 खिलाड़ी मात्र यहां पर डबल फिगर में पहुंच चुके, बाकी खिलाड़ी मात्र यहां पर ज्यादा कुछ कर नहीं देगा। रोहन सालगांवकर को अपेक्षा थी लेकिन उन्होंने एक छक्का लगा, लेकिन उसके बाद आउट हो चुके। इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले से आवाज जरूर आई है यहां पर, लेकिन शानदार गेंदबाजी, शानदार वापसी करता हुआ ध्रुव पेडनेम का खेमा। क्या कहने, गेंदबाजों ने 100% योगदान दिया और उतनी शानदार फील्डिंग यहां पर उनके खिलाड़ियों द्वारा। आगे जाकर खेलने की कोशिश, गेंद आई नहीं, बल्ले के ऊपर 1 रन तो जरूर बनेगा और काफी खुश होंगे कप्तान। लेग बाइट्स का इशारा आता हुआ काफी खुश होंगे कप्तान, क्योंकि सीमित स्कोर के ऊपर हमने प्रेडिक्शन किया था 80-90 का, लेकिन 80 के अंदर भी यहां पर रोका है और जीतने के लिए 79 रनों का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 78 रन बनाए हैं और जीतने के लिए 79 रनों का लक्ष्य रखा है, लगभग 10 के औसत से। और मैं तो कहूंगा यहां से ध्रुव पेडनेम के लिए ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल। आपको स्कोर बोर्ड के बारे में अगर बता जाए, गेंदबाजी के बारे में, गेंदबाजी का पृथक्करण आपको मैं बताना चाहूंगा। राजू दाभोलकर फिर एक बार चमके, जो कि यहाँ पर ध्रुव ओवर में यहाँ पर शानदार गेंदबाजी की। 2 ओवर में यहाँ पर 22 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। बंड्या भगत ने 2 ओवर डाले, 1 विकेट चटकाया, 20 रन खर्च किए।
टणक येतात तो बॉल ना जर मिस हिट जरी झालो ना तर लागान तो बाहेर जाणार आणि जे प्लेन बॉल असतो बरोबर ज्यावेळी असे अजिबात वरती शिला दिसतो ना म्हणजे अखंड राहतात त्यावेळी तो बॉल काय आता बॉलरला चान्स टायमिंग झाला तर तो बाहेर जातो पण तो टणक ध्रुव चषक 2016च्या अंतिम फेरीत कोणता संघ पात्र ठरेल याची निश्चिती करणारा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना प्रथम फलंदाजी करणारा 78 धावा धावफलकावर व 79 धावांचं एक सन्मानजनक आव्हान ठेवलं जाते ते आपल्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर आपल्या घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या या ठिकाणी ध्रुव पेडनेम क्रिकेट संघासाठी ज्या फलंदाजाने काल अद्वितीय फटकेबाजी केली होती एक आक्रमकता व संयमता यांचा मिलाफ ठेवत संघाची गरज ओळखत अनुभवी फलंदाजाने केलेली फटकेबाजी काय असते याचं ज्वलंत उदाहरण ज्या राजू दाभोलकरनं साकारलं तोच राजू दाभोलकर अष्टपैलू असा खेळाडू पारसा क्रिकेट संघासाठी यावेळी सलामीवीराची भूमिका पार पाडण्यासाठी जातोय तो सुदन ठाकूर याच्या सहाय्यानं 8 षटक म्हणजे 48 चेंडू 79 धावांची आवश्यकता ध्रुव चषकाच्या अंतिम फेरीमध्ये आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी दोन्ही संघ आतुरलेले व या दोन्ही संघामध्ये पाहायचं आहे कोणत्या संघाची सरशी होते व कोणता संघ अंतिमता हा अंतिम फेरीपर्यंत प्रवेश करण्यास मजल मारतोय तो गोलंदाजीची तुला सांभाळतोय तो गोलंदाज महेश उर्फ मलिंगा राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं पंचांचा इनिंग सुरू होण्याचा इशारा स्ट्राईकला सुदन ठाकूर नॉन स्ट्राईकला या ठिकाणी दिसतोय तो फलंदाज राजू दाभोलकर चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय पायचीसाठी हलकच अपील विश्वास कमी पंचांवर या अतिरिक्त अपिलाचा कोणताही दबाव येत नाही पंच ठामपणे आपल्या जागी निशब्दपणे उभे टाकलेले सांगतायत की चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा कोणताही पायचीचा प्रश्न येत नाही मात्र फलंदाजांवर अतिरिक्त दबाव येतो एवढं मात्र नक्की पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त 0 धावफलकावर सुदन ठाकूर खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो महेश याची गोलंदाजी राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं महेश मारा करतोय तो सुदन ठाकूरला यावेळी सुरेख असा चेंडू परंतु त्याहूनही चोख प्रत्युत्तर चेंडू जातोय तो डीप वाईडिश गली त्या दिशेनं 4 धावांसाठी उजव्या यष्टी बाहेरचा चेंडू व क्षेत्ररक्षणाचा जो निर्बंध त्या निर्बंधामध्ये केवळ चेंडूला दिशा देण्याचं कार्य सुदन ठाकूर करतोय बाकीचे जे सोपस्कार चेंडूला करायचे होते ते चेंडू करतोय व सीमाोल्लंघन करत या ठिकाणी चौकारनं सुदन ठाकूरला त्याचं खातं खोलण्यास तो प्रवृत्त करतोय परत एकदा महेश सज्ज होतोय ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू जमिनीलगत फटका मिडॉनला अपेक्षित फटका साध्य होत नाही तो सुदनला स्वतःवर तो नाराज दिसतोय मात्र क्षणिक नाराजी स्वतःवर न ओघवता या ठिकाणी पुढील चेंडूंवर मी खरपूस समाचार गोलंदाजाचा घेईन या आत्मविश्वासानं तो विकेटवर ठामपणे उभा यावेळी यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू सुदनला चकवतोय चेंडू या ठिकाणी बॅट व पॅड मध्ये असलेली भली मोठी पोकळी भरून काढतोय डावी यष्टी उद्ध्वस्त करतोय व या वर्षीच्या क्रिकेटच्या मोसमामध्ये जो फलंदाज काहीसा आउट ऑफ टच म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही असा सुदन ठाकूर याही वेळी काही करिश्मा सिद्ध करू शकत नाही व केवळ 4 धावांवर तो तंबूमध्ये परततोय पहिल्या कड्याच्या स्वरूपात समीर सेमीफायनलचा सामना नक्कीच चुरशीचा होईल कारण या संघाकडे 4 गोलंदाज आहेत 2 रोहन आहेत आणि एक महेश उर्फ मलिंगा आणि विवेक म्हणजे एक गोलंदाजी वेगळा भक्कम आहे त्यामुळे एका चुरशीची लढत पाहायला नक्की मिळेल सिंगारो बार्देश क्रिकेट संघाकडे गोलंदाजांचा भरणा आहे एवढं मात्र नक्की मात्र दुसऱ्या बाजूनं पारसा क्रिकेट संघाचा विचार केल्यास त्यांच्याकडेही आक्रमक फटकेबाजींची तेवढीच तोड फळी ही मौजूद आहे व निर्धारित 8 षटकांच्या सामन्याचा विचार केल्यास या ठिकाणी एखादं जरी षटक फलदायी 20 ते 25 धावा कुटणार त्यांना मिळालं असेल तर निश्चितपणे संघ साथीदारांचा हुरूप वाढवण्यास ते कारणीभूत ठरेल पाथ होतोय तो सुदन ठाकूर या ठिकाणी अवघ्या 4 धावांवर त्याची जागा घेण्यासाठी विठ्ठल गवस हा नवीन फलंदाज मैदानावर जातोय तो राजू दाभोलकर याला साथ देण्यासाठी खेळ समाप्त होतोय तो अवघ्या 4 चेंडूंचा 4 धावा धावफलकावर परत एकदा हलकीच दिशा दिली जाते ती थर्डमॅनला शॉर्ट थर्डमॅनला साबा आपल्या स्क्रीनवर येतोय साबाकडनं क्षेत्ररक्षण घेऊन चेंडूची परती होते विठ्ठल एकेर धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय व यावर्षीचा इन्फॉर्म फलंदाज राजू दाभोलकर याला फलंदाजीची तो संधी देतोय 5 धावा धावफलकावर एका कड्याच्या मोबदल्यात 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर सीमारक्षक म्हणून तैनात एक डीप लॉंग ऑफ एक डीप मिड विकेट व बाकीचे सर्व खेळाडू हे फलंदाजांना खेळून स्वीपचा फटका बहारदार राजूचा ज्या ठिकाणी काल इनिंग राजूने संपवली होती त्या ठिकाणावरनं तो इनिंगची सुरुवात करतोय
व एका स्वीपच्या बहारदार फटक्याने चौकारानं स्वतःचं खातं खोलत संघाला परावर्तित करतोय तो 9 धावांवर. प्रॉपर स्वीप म्हणा किंवा या ठिकाणी ऑर्थोडॉक्स स्वीप म्हणा, रिव्हर्स स्वीप म्हणा, हे फटके आपण वारंवार लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये पाहतोय. मात्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये असे फटके हे निश्चितपणे फलंदाजाचं कौशल्य दर्शवणारे असतात व तेच कौशल्य आपण पाहतोय राजू दाभोलकरचं. तो आल्या आल्याच या ठिकाणी चावेष्टी बाहेरचा चेंडू स्वीपच्या फटक्याद्वारे हलकीच दिशा देतोय. तो फाईन लेगला व चौकारानं स्वतःचं खातं खोलतोय, संघाला नेऊन ठेवतोय तो 9 धावांवर. पहिलं षटक समाप्त, 9 धावा धावफलकावर. आवश्यकता 79 धावांची, म्हणजे अजूनही 70 धावांचा किल्ला गाठायचा आहे. 42 चेंडूंचा खेळ बाकी. गोलंदाजीमध्ये निश्चितपणे बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय व बहुधा गोलंदाज रोहन याची वर्णी लागते. ती अर्थातच या ठिकाणी चिंगार बॉईज क्रिकेट संघाच्या वतीनं. दोन्ही संघासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न, दोन्ही संघांसाठी मान सन्मानाचा प्रश्न, कारण विजेता संघ थेट अंतिम फेरीमध्ये धडक मारू शकतो. पराभूत क्रिकेट संघाला उपांत्य फेरीत आपल्या संघाचं आव्हान संपुष्टात येण्याची भीती. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी मान प्रतिष्ठेचा सन्मानाचा असा प्रश्न, तो म्हणजे उपांत्य फेरीचा महत्त्वपूर्ण असा हा सामना. रोहन राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय तो फलंदाजला. विठ्ठल एक मनगटी फटका, शैलीदार फटका विठ्ठलच्या बॅटमधनं निघतोय. चेंडू जमिनीलगत जातोय तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेर धावेने या ठिकाणी विठ्ठल पोहोचतोय तो वैयक्तिक 2 धावांवर. तर सांघिक धावसंख्या दुहेरी आकड्यात परावर्तित होताना तब्बल 10 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. त्या अर्थातच फलंदाजी करणाऱ्या या ठिकाणी ध्रुव पेडनेम क्रिकेट संघाच्या 1 गडी बाद 10 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. 79 धावांची अति आवश्यकता. 10 धावांचं अंतर पार करतोय. अजूनही 69 धावांची मजल गाठायची आहे. 41 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे व क्षेत्ररक्षण गृहरचनेस काहीसा फेरबदल न करता गोलंदाज सज्ज होतोय तो रोहन राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. परत एकदा डाव्या यष्टीवरचा चेंडू, सुरेख असा मनगटी फटका, ज्या फटक्याला फ्लिक ऑफ रिस्क पद्धतीचा फटका म्हटला जातो, असा शैलीदार फटका या ठिकाणी राजू दाभोलकरच्या बॅटमधनं निघतोय. भारतीय माजी कर्णधार अझरुद्दीनच्या शैलीची आठवण करून देणारा असा मनगटी फटका हा राजू दाभोलकरच्या शैलीदार फटक्यामधनं दिसतोय व या दुहेरी धावाने धावसंख्या या ठिकाणी बदलते, ती तब्बल 12 धावांवर. 12 धावा एका आकड्याच्या मोबदल्यात. परत एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय तो रोहन राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. आकुड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन सुरेख असा स्क्वेअर कटचा फटका. चेंडू जातोय तो डीप कव्हर पॉइंटला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. महेशचं वाकडण्याजोगं क्षेत्ररक्षण तेवढीच तत्परतेने त्याची फेक घेते, ती अर्थातच गोलंदाजाच्या दिशेनं. मात्र राजू सहजगत्या 2 धावा पूर्ण करतोय, संघाला परावर्तित करतोय तो 14 धावांवर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर व 14 धावा धावफलकावर एका आकड्याच्या मोबदल्यात. कोणतीही अतिरिक्त जोखम न घेता ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक गृहरचना सजवलेली दिसत नाही त्या ठिकाणी खाली जागेचा पुरेपूर वापर करत संघासाठी उपयुक्त योगदान देण्याचा प्रयत्न हा राजूचा. यावेळी सुरेख असा फटका, स्वीपचा फटका, चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा हा निश्चितपणे चौकाराच्या स्वरूपात प्राप्त करतोय तो राजू दाभोलकर याच्या बॅटमधनं. केवळ चेंडूची गती पारखली, ज्या ठिकाणी कोणी क्षेत्ररक्षण गृहरचना सजवली नव्हती ती खाली जागा पाहिली व निश्चितपणे एक संघाला फलदायी असा फटका चौकाराच्या स्वरूपात राजूच्या बॅटमधनं निघतोय व या चौकारानं सांघिक धावसंख्या वधारते, ती 18 धावांवर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. 18 धावा विजयाच्या दिशेनं. एक सन्मानपूर्वकरित्या आगेकूच ही ध्रुव क्रिकेट संघाची व या आगेकूचीला, या घोडदौडीला जर लगाम घालायचा असेल तर प्रतिस्पर्धी असलेल्या झिंगारो बॉईज क्रिकेट संघाच्या प्रत्येक खेळाडूला आपलं योगदान देणं ही अति आवर्जून बाब. त्यावेळी मात्र काहीसा स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू, ऑफ कटर पद्धतीचा चेंडू चकवा देतोय तो अर्थातच राजूला. स्वतःवर राजू नाराज दिसतोय व फलंदाजला चकवणारा चेंडू हा गोलंदाजांकडनं गणल्यानंतर यष्टीरक्षक सनम साळगावकरही काहीसा उत्साह वाढवताना दिसतोय तो आपल्या साथीदाराचा. 18 धावा धावफलकावर.
परत एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये उंच फटका लॉंग ऑफच्या दिशेनं व डीप लॉंग ऑफला मी कोणतीही हैगाई करणार नाही, कोणतीही चूक करणार नाही, कोणतीही दयामाया राजू दाभोलकरला देणार नाही या जिज्ञासानं हवेत विरलेल्या चेंडूचं पुन्हाजी कलंगुटकर झेलात रूपांतर करतोय व धोकादायक फलंदाज ठरू शकणारा राजू दाभोलकर हा मात्र एक मोठा फटका मारण्याच्या नादात झेलचित होऊन दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात दुसऱ्या षटकाच्या सांगतेच्या चेंडूवर झेलचित होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. अठरा धावा धाव फलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात राजू बाद होतोय. वैयक्तिक 12 धावांवर एक संयमी व आक्रमकता यांची बरखुबी राजूच्या खेळीमध्ये पाहायला मिळाली. मात्र एक फटका डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर टोलवायचा हा त्याचा प्रयत्न काहीशा स्लोवर वन पद्धतीच्या चेंडूमुळे चकवा देतोय व डीप लॉंग ऑफला पुन्हाजी बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करत राजूला माघारी परतवत स्वप्नील मलिक याला मैदानावर फलंदाजीसाठी जाण्यास तो प्रवृत्त करतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 18 धावा धाव फलकावर अजूनही 61 धावांची नितांत गरज. प्राथमिक 2 षटकांचा पॉवर प्ले समाप्त होतोय. अजूनही 6 षटकांचा म्हणजे 36 चेंडूंचा खेळ बाकी व ज्या षटकाची फलंदाज आतुरतेने वाट पाहतात ते ध्रुव षटक अजूनही बाकी व ते ध्रुव षटक अवलंबण्याचा निर्णय यावेळी छोट्या चणीचे उभरते नव्या दमाचे असे खेळाडू ध्रुव पेडणा क्रिकेट संघाचे स्वप्नील व विठ्ठल ही जोडगोळी घेताना दिसत आहेत. महेश सज्ज होतोय. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू मिड ऑफला टोलावला जातोय. आनंद मांजरेकर झपकन चेंडूवर पोहोचतोय. त्याची परती वाखाणण्याजोगी यष्ट्यांचा वेध घेण्यास सक्षम काही ठरू शकत नाही. मात्र प्रतिस्पर्धी संघाचे फलंदाज एकेरी धावेने या ठिकाणी धावफलक वाढवताना दिसत आहेत. तो सांघिक 19 धावा ध्रुव क्रिकेट संघ धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 गडी बाद 19 धावा. स्वप्नील पंचांकडनं गार घेतोय. खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो महेश. याची गोलंदाजी ध्रुव षटक म्हणजे गोलंदाजाचं कसब तर फलंदाजाचं निश्चितपणे कौशल्य वाखाणण्याजोगं असं षटक म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही व या निश्चितपणे कौशल्य वाखाणण्यास पात्र ठरवणाऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज हवी ठरतोय की फलंदाज ही येणारे 5 चेंडू स्पष्ट करतील. 19 धावा धाव फलकावर या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. महेश सज्ज होतोय. यावेळी विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत फटका निघतोय. एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न. फेक येते ती स्ट्राईक यांच्या दिशेनं निश्चितपणे यष्ट्यांचा वेध घेणारी फेक. पंच या ठिकाणी बराच वेळ विचार मंथन करतायत व फलंदाज आपलं सुरक्षित अंतर गाठण्यास कमी पडतोय असा ठाम मनोधैर्य पंचाने आपल्या मनाशी बांधल्यानंतर त्याची खुणगाण फलंदाज बाद असल्याच्या स्वरूपात येते व तिसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात मात्र या ठिकाणी विठ्ठल धावचित होऊन मैदानाच्या बाहेर गेल्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत या उपांत्य फेरीच्या निमित्तानं. धाव फलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात आघाडीचे 3 फलंदाज स्वस्तात तंबूमध्ये परतत आहेत व मधल्या फळीतील फलंदाज राम नागवेकर याच्या खांदी मोठी जबाबदारी येऊन ठेपते ती संघाचा डोलारा सावरायची. छोट्या चणीचा व त्याच्या नसानसात आक्रमकता संयमता भिनलेली आपल्या शैलीदार फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दर्शवत अनेक मैदानं ज्यानं गाजवली त्याला आपल्या घरच्या मैदानावर एक कामगिरी करणं अति आवश्यक बाब. फॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका फॉलो थ्रूवर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. ते गोलंदाजाकडनं चेंडू टिपला जातोय व परतीचा झेल या ठिकाणी गोलंदाजानं टिपला म्हणून फलंदाज बाद झाले ते स्पष्ट संकेत मैदानावर येत आहेत व आल्या पावली मैदानावर केवळ या ठिकाणी हजेरी लावण्याचं काम करत रामही मैदानाच्या बाहेर जातोय. तो 4थ्या गड्याच्या स्वरूपात सांघिक धावसंख्या 19 अशी असताना धावफलकावर
अडचणीतनं आपल्या संघाला सावरण्यासाठी ज्याच्या पाठीशी जवळपास 20 ते 22 वर्षाचा क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव, खऱ्या अर्थानं गोवामध्ये टेनिस क्रिकेटचं प्रतिबिंब ज्याने बिंबवलं, ज्याने गोवा क्रिकेटमध्ये, टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये नवीन नवीन खेळाडू निर्माण केले, खऱ्या अर्थानं गोवामध्ये टेनिस क्रिकेटची ऊर्जा निर्माण केली, असं नवचैतन्य निर्माण करणारा तरुण खेळाडूंसाठी व जुन्या खेळाडूंसाठी नेहमी आदराचं प्रेरणास्थान म्हणून ज्यानं आपली ख्याती कीर्ती आजमावली असा संजय नागवेकर मैदानावर जातोय. तो अर्थातच या ठिकाणी साथ देण्यासाठी आपल्या साथीदाराला ओव्हरपेज पदाचा चेंडू आल्या पावले संजय टोलवतोय. तो अर्थातच डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रात षटकाराच्या स्वरूपात स्वतःचं खातं खोलतोय. मग का मला या ठिकाणी गोव्यातील एक प्रमुख खेळाडू म्हणून ओळखलं जातं, का मी त्या नावलौकिकास का त्या स्तुतीसुमानास पात्र आहे असं ठामपणे दर्शवताना संजय हा दिसतोय मैदानावरनं. षटकारानं धावफलक बदलतोय, धावफलक स्थिरावतोय 25 धावांवर. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स क्रिकेटमधील उक्ती सार्थकी लावताना दिसतोय तो संजय नागवेकर. पहिला गोलंदाज महेश सज्ज, यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू वया योग्य चेंडूला प्रत्युत्तर आहे तेवढ्या तोला मोलाचं बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीच्या फटक्याद्वारे एक समर्पित फटका हा संजय नागवेकरचा. तिसरं षटक प्रगतीपथावर 25 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. महेश एक सुरेख असा मारा करतोय प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना निश्चितपणे तो धावांसाठी झुंजवतोय, सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी संजय पूर्णतः चकतोय. संजयच्या शरीराचा वेध घेतल्यानंतर चेंडू यष्ट्यानं आदळतोय व त्रिफळाची धावून दुर्दैवीरित्या मात्र 5व्या गड्याच्या स्वरूपात या ठिकाणी एक दुर्दैवी असा अंत होतोय तो संजय नागवेकरचा. संजू नागवेकर बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय व एखाद्या सुरेल संगीताची मैफल चालू असताना विजेचा खोळंबा होऊन या ठिकाणी जो रसिकांचा भ्रमनिरास होतो तोच भ्रमनिरास या मैदानावर झालेला दिसतोय. तो संजू बाद झाल्यानंतर क्रिकेट रसिकांमध्ये या ठिकाणी एक सन्नाटा पसरतोय. प्रेक्षक वर्ग निशब्द झालेले दिसत आहेत की नेमकं काय घडतंय. या घरच्या मैदानावर एक विपरीत परिस्थिती निर्माण झालेली आहे ती अर्थात ध्रुव क्रिकेट संघासाठी. मात्र या विपरीत परिस्थितीवर मात करत निश्चितपणे माझ्या प्रेक्षक वर्गांना मी निराश करणार नाही. घरच्या मैदानावर माझ्या संघाचा झेंडा मी अंतिम फेरीपर्यंत रोवणार या जिज्ञासेनं, या प्रेरणेनं बंड्या भागात मैदानावर जातोय. तो आपल्या संघाचा कर्णधारला साथ देण्यासाठी. 5 गडी बाद 25 अशा संकटाच्या खाईत 3 षटकांच्या सांगतेकरी ध्रुव क्रिकेट संघ. काही सुरुवातीची दोलामय असलेली अवस्था, काहीशी खालावलेली अवस्था पारसा क्रिकेट संघाचं या ठिकाणी अस्तित्व संपुष्टात आणते की एक चमकदार वाखाणण्याजोगा एक चमत्कार क्रिकेटमध्ये म्हटला जातो. तो चमत्कार घडवत असाध्य ते साध्य या ठिकाणी घडलं जाईल हे सिद्ध करण्यासाठी अजूनही 5 षटकांचा खेळ हा बाकी. पुन्हाजी कलंगोटकर क्षेत्ररक्षण रूढरचना सजवतोय. आघाडीचे 5 फलंदाज बाद झाल्यानंतर जे नवचैतन्य, नवा उत्साह निर्माण झालाय त्याच नवा उत्साहानेच या ठिकाणी संचारित प्रेरित असा पुन्हाजीच्या नेतृत्वाखालील या ठिकाणी बार्नेश क्रिकेट संघ गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण या दोन्ही विभागात वरचढ किंवा वरचष्मा राखताना दिसतोय या महत्त्वपूर्ण अशा उपांत्य फेरीच्या सामन्यात. क्षेत्ररक्षण रूढरचना फैलवली जाते. डीप फाईन लेग, डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉंग ऑन, डीप लॉंग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कव्हर असे क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात. तर सर्कलमध्ये एकेरी संभाव्य धाव रोखण्यासाठी शॉर्ट थर्डमॅन व शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट कव्हर असे क्षेत्ररक्षक. पुन्हाजीचा चेंडू लेग स्पिन पद्धतीचा हलकेच मनगटी फटक्याद्वारे वळवला जातोय. एक धाव तो फलंदाज पूर्ण करतायत. नो मॅन स्लँग मध्ये चेंडू जातोय. 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करतायत व चेंडूपासून क्षेत्ररक्षक बऱ्याच दूरवर राहिल्याने 2 धावांचं अंतर सहजगत्या प्राप्त करतोय तो अर्थातच या ठिकाणी फलंदाज स्वप्नील मळिक, तो बंड्या याच्या साथीनं. 27 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपेज पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये तगडा फटका आनंद मांजरेकरकडनं नेत्रदीपक असं क्षेत्ररक्षण. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेची साथ बंड्याची, प्रतिसाद स्वप्नीलचा सहजगत्या पूर्ण होतोय तो दुहेरी धावांच्या स्वरूपात. एकोणतीस धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4थं षटक हे प्रगतीपथावर. 79 धावांची आवश्यकता म्हणजे अजूनही तब्बल या ठिकाणी 50 धावांची आवश्यकता आहे ती अर्थातच पारसा क्रिकेट संघाला.
गोलंदाजी तर सुरेख होते. दुसऱ्या बाजूने फलंदाजांवर अंकुश ठेवण्यात प्रारंभीच्या 3 षटकात गोलंदाज यशस्वी ठरतायत. मात्र ही त्यांची अयशस्वीतेकडे मी नेणार या जिज्ञासेनं स्वप्नील पायरवून उभा. तर आघाडीच्या गोलंदाजांनी जी कामगिरी केली त्यावर आपण पाणी फिरवणार नाही या जिज्ञासेनं पुन्हा जी सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. यावेळी सुरेख असा चेंडू फलंदाजाला चकवणारा, यष्टिरक्षकाच्या हाती जाणारा, हलकस या ठिकाणी अपील करण्यास यष्टिरक्षक गोलंदाज यांना प्रवृत्त करणारा असा एक निर्धाव चेंडू गणला जातोय तो पुनाजीच्या खाती व एका निर्धाव चेंडूच्या सांगतेखेरीज धावसंख्या स्थिरावते ती 29 धावा या ठिकाणी 5 कड्यांच्या मोबदल्यात. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू सुरेख असं पद्धत आली तर चेंडू जातो तो डीप लॉंग ऑनला व डोळ्याचं पातळ लावता तोच या ठिकाणी चेंडू डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पार करतोय तो चौकाराच्या स्वरूपात व 4 महत्वपूर्ण धावा या ठिकाणी स्वप्नीलच्या खाती ह्या जमा होत आहेत. धावा ह्या धावफलकावर 5 कड्यांच्या मोबदल्यात. चौथं षटक प्रगतीपथावर परत एकदा गोलंदाज पुनाजी सज्ज होतोय. सुरेख असा फटका व निश्चितपणे हा षटकार. तब्बल 10 धावांची खरबत्ती एक नवचैतन्याचं उत्साहाचं वातावरण निर्माण करतोय तो पारसा क्रिकेट संघासाठी. सांघिक धावसंख्या 39 धावफलकावर या 5 कड्यांच्या मोबदल्यात. चौथं षटक प्रगतीपथावर एक प्रतिभाशाली असा खेळाडू स्वप्नील आपली प्रतिभा आपली गुणवत्ता निश्चितपणे दर्शवताना दिसतोय व त्याची हीच गुणवत्ता पाहायचं कामी येते की नाही ते. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू 2 मोठे फटके त्यानंतर एकेर धावेसाठी चेंडू टोलवत निश्चितपणे तो सिद्ध या मैदानावर करतोय. काहीसं महागडं षटक समाप्त होतोय या ठिकाणी ते झिंगारो बॉईज क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं तर एक सफलता प्राप्त असं षटक समाप्त होतोय ते ध्रुव पेंडेम क्रिकेट संघासाठी. खेळ समाप्त होतोय 4 षटकांचा. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी बदल पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी पर्यायी गोलंदाज किंवा ब्रेक थ्रू मिळवून देण्यास सक्षम असा गोलंदाज ज्यानं अनेक वेळा आपल्या संघाला जमलेली जोडी या ठिकाणी गारद करण्यात यशस्वीता प्राप्त करून दिली असा तुषार सज्ज होतोय या इनिंग मधील महत्वपूर्ण 5वं षटक फेकण्यासाठी. तुषार डावखुराचा गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व संघासाठी 5वं षटक फेकण्यासाठी. तो आमच्या विरुद्ध दिशेनं समोर आहे फलंदाज तो स्वप्नील स्ट्राईकला व नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज बंड्या. 4 षटक 40 धावा ह्या धावफलकावर. हा टप्प्याचा चेंडू हा वळतेच फटका मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये जातोय. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याची अतिरिक्त जोखीम न घेता नाममात्र एकेर धावेवर फलंदाज समाधान मानतायत व या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 41 धावांवर. एक कमजोर असा चेंडू होता मात्र काही वेळा कमजोर चेंडू फलंदाजाला घातकी ठरतात. त्याची बहुमूल्य विकेट प्रतिस्पर्धी संघाला
या ठिकाणी बहाल करण्यास प्रवृत्त करतात. यावेळी चेंडू बराच वेळ हवेत राहतोय, मात्र सुदैव साथ देते स्वप्नीलला, कारण कोणी क्षेत्ररक्षक नाही अशा खाली जागी म्हणजे नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू जातोय व एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय. तो 41 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर. 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. बंड्या भगत प्रथमताच या मैदानावर या सामन्यामध्ये स्ट्राईक घेतोय, खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. तो डावखुऱ्याचा गोलंदाज तुषार, याची गोलंदाजी लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू आल्या आल्या बंड्याच्या बॅट मधनं एक देखण्या असा फटका निघतोय. डीप मिड विकेट सीमारेषेचं सीमोल्लंघन करतोय व षटकारानं बंड्या स्वतःचं खातं खोलत संघाला परावर्तित करतोय. तो 47 धावांवर. सत्तेचाळीस धावा ह्या धावफलकावर. 5 गडी बाद 25, त्यानंतर आता 5 गडी बाद 47 म्हणजे तब्बल 22 धावांची ऐन मोक्याच्या क्षणी बहरणारी उभरणारी नवसंजीवनी प्रदान करून देणारी या ठिकाणी भागीदारी होताना दिसते. यानंतर होणारा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना तो म्हणजे अनेक की आपल्या संघ साथीदारांसह त्यांनी फोटो सेशनसाठी सज्ज राहायचंय. 5वं षटक प्रगतीपथावर. 47 धावा धावफलकावर. एक घणाघाती फटका बंड्याचा मैदानाच्या बाहेर गेलेला. खेळ पूर्ववत सुरू होण्यास काहीसा विलंब ठरवताना दिसतोय व अखेर काहीशा विलंबाने परत एकदा मैदानावर. गोलंदाज तुषार आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू सुरेख असा स्क्वेअर कटचा फटका. चेंडू डीप पॉइंटची मागच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. पहिला फटका हा हवाई मेल पद्धतीचा फटका, तर दुसरा फटका हा जमिनीचं चुंबन घेऊन जमिनी लगतचा फटका. म्हणजे हवाई मेल व जमिनी लगतचे फटके यांचं सुंदर मिलाप बंड्या भगतच्या फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतोय व हीच त्याची कामगिरी सांघिक अर्धशतक धावफलकावर झळकवण्यास कारणीभूत ठरते. यावेळी मात्र एक घोडचूक बंड्या करतोय. एक निश्चितपणे बंड्यासारख्या फलंदाजाकडनं जे अपेक्षित नव्हतं ते या ठिकाणी विघटित घटना घडते, कारण 2 चेंडूंवर 10 धावा निघाल्यानंतर आक्रमक फटका टोलवण्याची यावेळी कोणती गरज नव्हती. मात्र बंड्याचा आतताईपणा या ठिकाणी बहरले. निर्माण करून देण्याची ठरते. तेच वातावरण अंतिम फेरीस पात्र करण्यास पारसा क्रिकेट संघाला पोषक ठरते की नाही, की बंड्याचा आतताईपणा या सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरत या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी असलेल्या झिंगारो बार्देश क्रिकेट संघाला एक नवसंजीवनी प्रदान करून देण्यात यशस्वीता प्राप्त करतोय की नाही हे सांगण्यासाठी आपल्या समोरील आमचे सहकारी अशोक नाईक. धन्यवाद समीर. बिल्कुल अच्छे मोड़ पर थी ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम. शायद बंड्या मेरे ख्याल से निश्चित रूप से गलती कर बैठे, कोई आवश्यकता तो नहीं थी. 2 बड़े शॉट खेल चुके थे बिल्कुल, जो कि ठीक से गाड़ी पटरी पर दिखाई दे रही थी. 25 रन 5 विकेट के बाद से एक बड़ी साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन शायद थोड़ा सा जो कि जल्दबाजी में अपना विकेट खो बैठे और फिर से मेरे ख्याल से मैच अब शायद 50-50 का रहेगा मैदान पर. नहीं, बल्लेबाज मैदान पर सामने से गेंदबाजी में तुषार जो कि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज शायद शुरू में महंगे साबित हुए थे, लेकिन एक विकेट चटकाते हुए फिर से थोड़े से मेरे ख्याल से जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम के हौसले बुलंद दिखाई देते हुए मैदान पर. सेमीफाइनल का मुकाबला शायद जो मैच अपेक्षित था, जो उम्मीद थी दर्शकों में, बस वो मैच दिखाई देता हुआ एक शानदार मुकाबला मैदान में.
अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार बिल्कुल ऑफ स्टंप और हवा डालकर विकेट कीपर सनम के हाथों में। शायद थोड़ी सी शुरू में जो कि शॉर्ट गेंदे जो कि शायद ओवर पिच गेंदे कर रहे थे, लेकिन इस बार बिल्कुल जो कि विकेट मिली, मेरे ख्याल से एक बड़ी विकेट मिली तो अपने आप को वापस किया इस मैच में तुषार ने। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर काफी दूर फील्डर पहला रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए निकले। शायद बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट मैदान में क्या रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में से शायद बिल्कुल जो कि नवाजा जा सकता है। दो बहुमूल्य रन काफी मायने रखेंगे इस मैच में, हर रन बड़ा कीमती होगा। 2 रन के साथ से स्कोर मुकम्मल होता हुआ 53 रन। रन 6 विकेट पर और खेल अब बचा हुआ सिर्फ 3 ओवर का। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 18 गेंदों में जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर स्वप्निल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर गुरु और कमेंट बॉक्स की तरफ से रोहन गेंदबाजी के मोर्चे पर। दूर दूर जमाई गई फील्ड, सूरज माथे पर, कड़ी धूप मैदान पर और शायद क्रिकेट का खुमार, क्रिकेट का बुखार इस मुर्मू सेतु मैदान पर। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, हल्के से गेंद को पुश किया, इस बार ऑफ साइड पर शॉर्ट कवर पर विवेक आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सामने से मौका दिया मेरे ख्याल से गुरु के लिए जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, और सामने जबकि रोहन गेंदबाजी के मोर्चे पर। सेमीफाइनल का तगड़ा मुकाबला, अंतिम फेरे में बस प्रवेश कौन करेगा, शायद सभी की निगाह है मैदान के ऊपर, लेकिन शायद अभी भी बात कहना काफी गलत बात होगी मैदान पर। रोहन अपने बॉलिंग रनअप पर दाहिने हाथ से राउंड विकेट और बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने स्ट्राइक एंड पर गुरु। अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ देखना होगा। पहला रन फिर से तेजी के साथ और जब तक आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। शायद कोई जोखिम नहीं ले रहे हैं, मालूम है कि यहां पर और एक विकेट खोना शायद सामने वाली टीम बिल्कुल हावी होगी मैदान पर। सिंगल डबल से अपने आप को स्कोरिंग को बढ़ा रहे हैं। अच्छा क्रिकेट, एक अच्छा शॉट, 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। और फिर से स्ट्राइक पर गुरु जो कि सामना करेंगे रोहन की गेंदबाजी का। रोहन दाहिने हाथ से राउंड विकेट। 5 फील्डर ऑन साइड पर, 4 ऑफ साइड पर जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम की फील्डिंग की सजावट। और इसी बीच में अगली गेंद, फिर से अच्छी गेंद, इस बार अच्छा शॉट, इस बार शॉर्ट कवर पर लगभग जो कि बढ़िया फील्डिंग, विवेक जो कि गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। ये मेरे ख्याल से अच्छी जो कि बैटिंग प्लानिंग है मेरे ख्याल से। सिंगल डबल से जो कि धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है, अच्छी बात है। शायद एक खराब गेंद जरूर बीच में मिलेगी, उस गेंद पर बड़ा शॉट, ये शायद नीति होगी बल्लेबाजों की। और दूसरी बात, जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम के लिए शायद मैं तो कहूंगा अब विकेट लेनी पड़ेगी। विकेट नहीं मिली तो शायद मैच दूर होगा हाथों से। सत्तावन रन टोटल, 57। अच्छा शॉट, इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। पुनः जी पहले बाउंस के बाद आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 58 पर टोटल। इक्कीस रनों की अभी भी आवश्यकता, शायद इसके बाद से 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। 14 गेंदों का, 14 गेंदों में 21 रन, 14 चेंडू 21 धावा।
फिर से बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, शायद एक लाजवाब शॉट, शानदार छक्का। समीर मैं तो कहूंगा आज के दिन का शॉट ऑफ द डे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था रोहन ने, चेंज ऑफ पेस किया था, थोड़े से पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और शायद शॉट ऑफ द डे। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर यह शॉट बिल्कुल लाजवाब। लेग स्टंप पर इस बार खूबसूरती के साथ प्ले किया, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि बढ़िया फील्डिंग। पुनाजी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन अपने खाते में जोड़ दिया। ओवर समाप्त होता हुआ छठा, 6 ओवर का खेल समाप्त, 65 रन स्कोरबोर्ड पर। 14 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदों का खेल बाकी। एक अच्छा ओवर ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के लिए मैं तो कहूंगा। शायद एक बढ़िया चौका देखने को मिला कवर बाउंड्री पर। 2 ओवर का खेल बाकी, 12 गेंदों का। मैच को जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। अंतिम फेरी में कौन प्रवेश करता है पहले, ध्रुव पारसे या जिंगारो बॉयज? जबकि दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला तुरंत खेला जाएगा। अनिक 11 बिचोलिम और गुमटेश्वर केपे मध दोन्ही संघांना सूचना कृपया फोटो सेशनसाठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला ताबडतोब या, कारण या सामन्यानंतर लगेचच सामना होईल आणि ठीक दुपारी 2:30 वाजता अंतिम सामना खेळवला जाईल। दो ओवर का खेल बाकी, 12 गेंदों का, 14 रनों की आवश्यकता। समीर शायद मेरे ख्याल से ये ओवर मैच का फैसला कर देगा। क्या होगा मैच में, कौन जीतेगा, शायद ये फैसला करने वाला ये ओवर, निर्णायक ओवर। इस ओवर में लगभग मैच का निकाल जो कि आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। रोहन दूर वाले छोर से गेंदबाजी के मोर्चे पर, स्ट्राइक पर गुरु, नॉन स्ट्राइकर इन पर उल्लास। 12 गेंदों का खेल बाकी और 14 रनों की मैच को जीतने के लिए आवश्यकता। गुरु और नॉन स्ट्राइकर इन पर माफ कीजिए स्वप्निल, ये जोड़ी मैदान पर। शायद रति महारथी बल्लेबाजी थी लेकिन वो काफी बहुत सस्ते में लौटी, लेकिन शायद ये इन युवा खिलाड़ियों की तारीफ करनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी। शायद मैच हाथों से जो कि जाने नहीं दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप कर हवा डालकर निकलते हुए विकेट कीपर सनम के हाथों में। सनम विकेट से पीछे बहुत ही चौकरने स्फूर्तिले शायद अनुभवी खिलाड़ी विकेट से पीछे अपने फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए, और खेल बचा हुआ जबकि 11 गेंदों का और जीतने के लिए अभी भी 14 रनों की आवश्यकता। रोहन राउंड विकेट डाइनैच से बड़ा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और देखना होगा वहां पर क्या हुआ। शायद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर क्या कमाल की फील्डिंग अनंत मांद्रेकर की, बहुत दाद देनी पड़ेगी भाई इस फील्डिंग को। शायद ये रन काफी मायने रख सकते हैं, अगर बाजी पलट गई तो शायद ये रन काफी महत्वपूर्ण होंगे। बढ़िया शॉट इस बार देखना होगा सीधा, जबकि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को तब्दील किया महेश उर्फ मलिंगा, जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। शायद और एक धक्का लगता हुआ ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को। मैच समीर फिर से शायद कुछ इधर उधर घूमता हुआ। कहना भाकित करना काफी गलत बात होगी, लेकिन सेमीफाइनल के मुकाबले की जिस राह से, जिस भीड़ से दर्शक इस मैदान पर, शायद आंखों की प्यास निश्चित रूप से बुझा देने वाला ये बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला। नितेश नए बल्लेबाज। चौदह रन की बारी, शायद शानदार बारी, उपयुक्त बारी मेरे ख्याल से,
जबकि फ्रंट लाइन बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी थी, लेकिन बीच में अपने जो कि टीम को संवारा। एक शानदार बारी, छोटी बारी, लेकिन युवा खिलाड़ियों की निश्चित रूप से दाद देनी पड़ेगी। बढ़िया बल्लेबाजी। नए बल्लेबाज मैदान पर और 9 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता। 9 चेंडू आणि 12 धावा। शायद हम इस ओवर से पहले समीर बात कर रहे थे, ये ओवर काफी निर्णायक रहेगा। दो बातें देखने को मिली। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक अनंत मांद्रेकर ने जो रन बचाए, एक बढ़िया कैच जो कि महेश उर्फ मलिंगा ने लपका, एक बहुमूल्य विकेट ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने खो दी। शायद सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के लिए, जीत की और लगभग कदम जो कि बढ़ा रही थी, बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, लेकिन शायद एक बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया कैच वापस किया मैच में। शायद मेरे ख्याल से अभी भी अपना आह्वान जो कि बरकरार रखते हुए मैदान पर दूर वाले छोर से रोहन अपने बॉलिंग रनअप पर पूरे उत्साह हौसले के साथ नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर। शायद क्या प्रेशर है देखो मैदान पर दोनों टीमों के ऊपर। सेमीफाइनल के इस मैच में अच्छा शॉट, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद को खेला 4 रन के लिए। शायद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली लेग स्टंप पर, लेकिन शायद बैट का थोड़ा सा मुंह खोला और लेग साइड पर हल्के से गेंद को शायद जो कि गोपाल भट्ट हमेशा ये शॉट खेलते हैं। फाइन लेग बाउंड्री पर शायद ये निर्णायक चौका, 4 रन, बहुमूल्य 4 रन। अब खेल बचा हुआ 8 गेंदों का और 8 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया शॉट ऑन साइड पर देखना होगा। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर पुनाजी तेजी के साथ आते, शायद दूसरा रन नहीं मिलेगा। पुनाजी बहुत ही चौकर ने अपने फील्डिंग में। फ्री हिट का इशारा नितेश है जो कि नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर। शायद देखना होगा फ्री हिट पर क्या होता है। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद। शायद हमें लग रहा था कि फ्री हिट पर यह मैच समाप्त होता है या नहीं, लेकिन बढ़िया गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर गेंद को पेश किया, उछालती गेंद को, थोड़ा सा आउट स्विंग लेग ब्रेक था गेंद में, बाहर की तरफ निकली। विकेट कीपर सनम ने गेंद को कलेक्ट किया और खेल अभी भी बचा हुआ शायद 7 गेंदों का। 7 गेंदों का खेल बाकी, 6 रन। शायद एक बड़ा शॉट और मेरे ख्याल से एक विकेट मैच में फिर से वापसी। बढ़िया गेंद, तेज गेंद, क्या स्पीड थी गेंद में, क्या रफ्तार थी। कंधों का इस्तेमाल अंतिम क्षणों में झटका दिया था। शायद बिल्कुल ब्लॉक होल में ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। फ्री हिट पर मौका नहीं दिया, उस गेंद पर भी मौका नहीं मिला। शायद अपना आह्वान अंतिम ओवर तक बरकरार रखा। अंतिम ओवर का खेल बाकी, 6 गेंदों का। मैच को जीतने के लिए 6 रन चाहिए और विकेट हाथों गिर चुके हैं।
को दाद देनी पड़ेगी, मलिंगा को दाद देनी पड़ेगी, अनंत मांद्रेकर को, रोहन को दाद देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया प्रदर्शन। शायद अंतिम घड़ी तक, अंतिम क्षणों तक मैच को हाथों से मेरे ख्याल से नहीं छोड़ा। और ये निर्णायक ओवर, अंतिम ओवर, 6 गेंदों का खेल बाकी और एक शॉट मैच को जीतने के लिए। स्टंप को कवर करके इस बार बढ़िया शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, शायद बिल्कुल खाली इलाका छोड़ा, स्टंप को कवर करके गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। वहीं से इस बल्लेबाज ने कमाल की अपनी टीम के लिए। बढ़िया गेंद, इस बार रन लेने के लिए निकले, देखना होगा शायद बिल्कुल, और इसी के साथ जो कि रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। लेग 22 का इशारा अंपायर द्वारा। शायद अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी। लेकिन एक बढ़िया मुकाबला, बिल्कुल कांटे का टक्कर, एक यादगार मुकाबला। जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम को दाद देनी पड़ेगी। बढ़िया गेंदबाजी, शायद थोड़ी सी जो कि अंतिम 2 ओवर में रन नहीं बने। 12 गेंदों में अंतिम 2 ओवर में जिंगारो बॉयज ने सिर्फ 13 रन बनाए। शायद वो थोड़े से 10-15 रन पीछे रह गई समीर। अंतिम 2 ओवर में रन नहीं बने जिंगारो बॉयज के। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, शायद देखना होगा विकेट मिली और ब्रेक गेंद थी, अंदर आई, घूमी गेंद और स्क्वायर कट करना चाहते थे, बल्ले को चाट कर गेंद विकेट कीपर सनम के हाथों में। शायद मुकाबला अभी भी जारी, 3 गेंदों का खेल बाकी और 1 रन मैच को जीतने के लिए। गुमटेश्वर केपीएम क्रिकेट संघ कृपया सामन्यासाठी सज्ज राहायचं आहे। गुमटेश्वर केपीएम, नए बल्लेबाज अमित मैदान पर। मेरे ख्याल से स्कोरों को जो कि अंकुश लगाया, स्कोरों पर लगाम लगाया, वो ये गेंदबाज थे, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज। बढ़िया गेंदबाजी की थी। 2 ओवर में 10 रन दिए थे, 3 विकेट चटकाए थे। बिल्कुल मेरे ख्याल से जो कि कम स्कोर में सीमित किया जिंगारो बॉयज क्रिकेट टीम को, उसमें बड़ा खासा योगदान अमित का। 2 ओवर 10 रन 3 विकेट, वो स्ट्राइक पर बल्लेबाजी पर पूना जी के सामने। हवा में गेंद मिड ऑन बाउंड्री पर, शायद थोड़ा सा शायद दूर रह गए रोहन, लेकिन एक बड़ा मैच, अच्छा मैच। शायद स्वप्निल मलिक की जो कि शानदार बारी, 27 रनों की। समीर शायद बात क्या कहेंगे, अमित की शानदार गेंदबाजी, शायद स्वप्निल मलिक की व या उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये पारसा क्रिकेट संघ 5 गडी बाद 25 अशा नाजूक अवस्थेतनं असताना कर्णधार या नात्यानं ज्यानं एक सुरेख अशी खेळी या मैदानावर साकारली व अंतिम क्षणापर्यंत पाय रोवून खेळपट्टीवर उभा राहून अंतिम फेरीपर्यंत आपल्या संघाला पोहोचवण्याचं स्वप्न ज्यानं साकार केलं, असा स्वप्नील या ठिकाणी सामनावीर या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय।
भाजपा युवा मोर्चाचे सन्माननीय समीरजी मांजरेकर यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याचा सामनावीर स्वप्निक याला गौरवावं. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. या ठिकाणी सामनावीर या पारितोषिकाचं वितरण होताना दिसतंय. सन्माननीय समीरजी मांजरेकर यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा हिरो या ठिकाणी स्वप्नील याला गौरवलं जाते व काही क्षणातच या ठिकाणी दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना अनेक बिचोलीम विरुद्ध घुमटेश्वर केबेम या दोन संघादरम्यान आम्ही सुरू करले आहोत. ठीक 2:30 वाजता क्रिकेट रसिकांच्या माहितीसाठी की अंतिम फेरीचा सामना होणार आहे. या ध्रुव चषकावर कोणता संघ आपलं नाव करतोय याची निश्चिती करण्यासाठी होणारा अंतिम फेरीचा सामना ठीक 2:30 वाजता आम्ही सुरू करत आहोत. पहिला अंतिम फेरीत प्रवेश करणारा संघ म्हणजे ध्रुव पेंडा क्रिकेट संघ आपली आजमावणी करतोय, आपली नाव नोंदणी करतोय. तर त्या ध्रुव पेंडा क्रिकेट संघाशी खेळण्यासाठी कोणता सक्षम सज्ज राहील याची